अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनएम सेकंड ईयर 2025 के एमएसएन सब्जेक्ट के फाइनल एग्ज़ाम के बारे में। एमएसएन के दो पेपर्स होते हैं, एमएसएन फर्स्ट एंड एमएसएन सेकंड। एमएसएन सब्जेक्ट के टोटल 25 चैप्टर्स हैं, तो इसका बहुत सिलेबस है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो या तो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस का आपने नर्सिंग मैनेजमेंट भी साथ साथ प्रिपेयर करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट दो तरह का होता है, एक स्पेसिफिक नर्सिंग मैनेजमेंट और एक जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट। स्पेसिफिक नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी डिजीज़ कंडीशन का कोई ख़ास नर्सिंग मैनेजमेंट है। लाइक अगर किसी पेशेंट में स्ट्रोक आया है तो उसके हेड को 30 डिग्री तक एलिवेट किया जाता है ताकि उसका आईसीपी डिक्रीज़ हो। लेकिन हेड को एलिवेट करना हर एक डिजीज़ कंडीशन के अंदर नहीं लिखा जा सकता है। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप हर एक डिजीज़ के अंदर लिख सकते हैं। तो अगर आप उनके लिए एक नोट बनाएंगे और फिर अगर आपको एग्ज़ाम में स्पेसिफिक नर्सिंग मैनेजमेंट रिकॉल नहीं होता है तो आप जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट को लिख करके मार्क्स गेन कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे ही। तो मैंने आपके लिए वो भी प्रिपेयर किया है, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं वो जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट भी आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द वेरियस important questions for the final exam. First we have characteristics of cancerous cells. Similarly, prevention, screening, early detection, warning signs of cancer, benign and malignant tumor, differences, lung cancer and breast cancer, full management including surgical management, mastectomy nursing management, CA rectum, CA gallbladder, CA pancreas, brain tumor, carcinoma of stomach, immunotherapy, radiotherapy, psychosocial aspects of cancer, breast abscess, mastitis, breast self-examination, herpes zoster, burn, full topic, measles, COVID-19, HIV/AIDS, malaria, mumps, rabies, tuberculosis, shock, anaphylactic shock, nurses' role in disaster management, scabies, impetigo, dacrocystitis, hypertension, anemia, thalassemia, blood transfusion, hand washing, gloving and gowning, scrubbing, perioperative nursing, जिसमें तीन तरह के नर्सिंग मैनेजमेंट आते हैं, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग। Positions: Bell's palsy, hypothyroidism, hyperthyroidism, diabetes mellitus, osteoarthritis, fracture, osteoporosis, constipation, urinary retention, seizures, epilepsy, meningitis, encephalitis, head injury। हेड इंजरी के बाद आपका आता है myasthenia gravis, cardiovascular accident, autoimmune diseases, rheumatoid arthritis, inflammation, immunity, gout, allergic rhinitis, food allergy, malnutrition, fluid and electrolyte balance, acid base balance, myocardial infarction, which is also known as heart attack, congestive heart failure, care of patient in respiratory intensive care, asthma, acute respiratory distress syndrome, COPD, pneumonia, pulmonary embolism, tonsillitis, GRD, gastric ulcer, gastritis, pancreatitis, cholelithiasis, cholecystitis, dysphagia, IBS, ulcerative colitis, and Crohn's disease, Meniere's disease, nephrotic syndrome, renal transplant, renal calculi, dialysis, orchitis, eye banking in India, pre-operative operation for pre-operative preparation for open heart surgery, और इसका मैनेजमेंट भी आपने लिखना है। पैकिंग एंड ड्रेसिंग, पैकिंग एंड स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रेसिंग्स, डर्माटाइटिस, बेड सोर, डिमेंशिया, स्ट्रैबिस्मस, और आपसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई या ईयर कभी कभी पूछा जाता है। कॉर्नियल अल्सर, फॉरेन बॉडी इंजेक्शन, नर्सिंग केयर प्लान, स्नेक बाइट, एपिस्टैसिस,
sex health and hygiene, tuberculosis of spine and abdomen, definition of health, nursing assessment of patient, anaphylaxis, post-operative complication, history of surgical nursing in India, diabetic diet, blepharitis, adverse drug reactions, trigeminal neuralgia, care of a patient with nephrectomy, neural deafness, otitis media, sinusitis, pharyngitis, pulmonary edema, utilization of community resources and disaster management, barrier nursing, deviated nasal septum, swine flu, syphilis, athlete's foot, refractive errors, role of nurse in anesthesia, ascites, geriatric nursing, night blindness, frostbite, history of modern medicine and surgery, various theories of illness, water content of body, preparation of operation theatre and fumigation, graft versus host disease, perforation of eardrum, varicose venous, triage। और फिर आपका जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख कर के बनाए हैं। मैंने उनका पैटर्न थॉरोली चेक किया है और तब जा कर के मैंने इनको यहाँ पर लिखा है। तो आप प्लीज़ इनको अच्छी तरह से नोट डाउन करिएगा। और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये ब्रेस्ट कैंसर जब भी आता है तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट ज़रूर पूछा जाता है, विच इज़ द मेस्टेक्टॉमी। एंड उसका फिर नर्सिंग मैनेजमेंट अलग से पूछा जाता है। तो इसको भी आप जो है नोट डाउन करिएगा। और ये है हमारा जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट। मतलब ये एक ऐसा नोट है जिसे आप किसी भी डिजीज़ के अंदर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर 5 मार्क्स होंगे क्वेश्चन के, आपको जो है 2.5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो ये आप एक बार याद करें और फिर आप इसे किसी भी डिजीज़ के अंदर लिख सकते हैं। और कि नर्सिंग मैनेजमेंट जो है बारहा पूछा जाता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए आपको बेटर रहेगा कि आप जो है एक तो ये याद करें और फिर जो स्पेसिफिक नर्सिंग मैनेजमेंट होगा वो आपको याद करना ही करना है। आई होप ये आपको बहुत मदद देगा और ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और एक बात मुझे ये कहनी है कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है पेपर्स का, उसमें एग्ज़ामिनर ये नहीं देखता है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लेस इम्पोर्टेंट है। बल्कि वो ये देखता है कि अ, इनके कितने चैप्टर्स हैं, और वो हैं 25। तो वो 25 के 25 चैप्टर्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो उस एतबार से आपने हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करना ही पड़ता है। फिर कुछ चैप्टर्स बहुत बड़े हैं और कुछ चैप्टर्स छोटे हैं। तो जो बहुत बड़े हैं उसके अंदर ज़्यादातर टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो बस उसमें से एक टॉपिक उठाता है और उसको पेपर के अंदर डालता है। तो उस एतबार से आपने जो है हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना ही है। बट स्टिल कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो मैंने इस यहाँ पर लिख डाले हैं। तो आपके लिए बेटर तरीका यही रहेगा कि आप पहले इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, फिर जा कर के आप जो है अपने सिलेबस पर जाएं और आप पूरे सिलेबस को जो है कवर अप करने की कोशिश करें। उसी से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज़ हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसको पहले प्रिपेयर किया जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।